doing the revision for the exam. So today you are going to have your social study lesson number 18, the last part of lesson number 18. So I'm sharing the screen with you. You have remember the last time I have done the lesson number 80. For example, let's see the what did you learn from this. And before that, I'm going to do the slideshow so that you can see well. So what I'll do it over there, we'll go just back. Uh, Here you have learned the introduction. Your lesson is what? Governing ourselves. That is lesson number 18. Is lesson number 18, governing ourselves. So now here you have learned already introduction. You have learned the central government. You have learned the Lok Sabha. Now today, Lok Sabha, you have learned the Rajya Sabha. Today you are going to learn from the president. Yes, from there you will be learning. So then I will do this one, the president. So we'll go back to that. Okay, the president of India is the head of the country. The members of the Lok Sabha, the Rajya Sabha, and the state legislative assembly elect the president. So here the president of India is the head of the country. Means who is the head of the country? President. So in India, the head of the uh, our head is president. Yes, the member of the Lok Sabha, the Rajya Sabha, and the state legislative assembly elect the president. So then, who are the people elect the president? Who? So members of the Lok Sabha. First thing is who? Members of the Lok Sabha. Then the Rajya Sabha. It means the member of the Rajya Sabha and the legislative assemblies members. They all elect the president. सो द प्रेसिडेंट इलेक्ट के लिए कौन कौन है? लोकसभा का मेंबर्स है, राज्यसभा का मेंबर है एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर, मतलब राज्यों में जो सब मेंबर होते हैं वो सब प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं. द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 5 years. सो प्रेसिडेंट कितना साल के लिए इलेक्ट होता है? 5 साल के लिए. यस, सो प्रेसिडेंट ऑफ India elected for a term of 5 years. So every after 5 years, again they elect the president. So now we'll move to the next one, forming of the forming the government. कैसे government form होता है इंडिया में, तो हम सीखेंगे. So there are many political parties in our country. This multi-party system is very important part और डेमोक्रेसी. सो इंडिया में बहुत सारा, मतलब बहुत ज़्यादा पार्टीज है, एक दो नहीं है. सो इसलिए ये मल्टी पार्टी सिस्टम है एंड ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेमोक्रेसी. हमारा गणतंत्र, डेमोक्रेसी का मतलब गणतंत्र, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है? यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टीज है. In a national election, different parties field their candidates. तो जब नेशनल इलेक्शन, मतलब पूरा देश में जब इलेक्शन होता है नेशनल वाइज, नॉट स्टेट वाइज, मतलब पूरा इंडिया में जब इलेक्शन होता है, तो ये इलेक्शन जो डिफरेंट पार्टीज क्या करते हैं, वो उनका जो कैंडिडेट होता है उनका कैंडिडेट दे देता है. सो दे डिफरेंट पार्टीज फिल देयर कैंडिडेट, मतलब कौन कौन कैंडिडेट वो इलेक्शन के लिए खड़ा होंगे तो वो उसका नाम दे देता है. The party that gets the maximum seats in the Lok Sabha forms the government at the center. जो पार्टी को ज़्यादा वोट मिलते हैं लोकसभा में, वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट फॉर्म करता है. तो लोकसभा में जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलता है, मैक्सिमम वोट मिल जाता है, वही पार्टी क्या है? गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं. सो दे मेक द गवर्नमेंट एट द सेंटर. तो सेंटर के लिए वही पार्टी गवर्नमेंट हो जाता है.
The president appoints the leader of this party as the prime minister. So who who appoint the prime minister? So here प्रेसिडेंट जो होता है हमारा इंडिया में, जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या करता है, जो लीडर द लीडर को चूज करता है जो पार्टी में प्राइम मिनिस्टर बनाता है। सो प्राइम मिनिस्टर के लिए जो लोकसभा में जिसको ज़्यादा वोट मिलता है उसमें जो लीडर होता है उसको प्राइम मिनिस्टर एज ए प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट चूज करते हैं, उसको अपॉइंट करते हैं। ओके, he or she then form the union cabinet that consists of the council of members. So he or she मतलब जो प्राइम मिनिस्टर होता है, हाँ, तो क्या करते हैं, then he or she क्या करते हैं, they form the union cabinet. union cabinet मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब वो जो प्राइम मिनिस्टर होता है उनका जो मिनिस्टर होगा तो ही और सी उनको ही मेड दिस थिंग, जिसको उसको उनका ग्रुप में लेके आएंगे, बनाता है। तो यहाँ पे द यूनियन कैबिनेट दैट कंसिस्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट कैन बी इधर फ्रॉम द लोकसभा और द राज्यसभा। ये जो कैबिनेट जो मिनिस्टर होता है, मतलब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, ये कहाँ से होता है, ये लोकसभा से भी हो सकता है और राज्यसभा से भी हो सकता है। मतलब दोनों हाउस जो है लोकसभा एंड राज्यसभा, ये जो अपर हाउस लोअर हाउस होता है, लोअर हाउस मतलब लोकसभा, अपर हाउस राज्यसभा, ये दोनों हाउस का जो मेंबर होता है, ये मेंबर ही जो है वो कैबिनेट के लिए यूनियन कैबिनेट मतलब हो जाता है। जो मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, वो उसको लेके फॉर्म करते हैं। Okay, now we'll move to the next one, state government. Every state has a legislative assembly. तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है विधानसभा होता है, तो हर एक स्टेट में होता है। इट मेक्स लॉज फॉर द स्टेट, और इनका काम क्या होता है, स्टेट में लॉ बनाना, तैयार करना। लॉ मतलब जो नियम होता है, रूल रेगुलेशन होता है, दे मेक दिस थिंग। द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स MLA, yes, MLAs, इसका फुल फॉर्म मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज are elected by people who are more than 18 years of age. They are elected for a term of 5 years. So यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर जो होता है, MLA जो होता है, वो ये इसको कौन इलेक्ट करते हैं, पीपल जिसका एज 18 years और अबव होता है। ओके, सो दे इलेक्ट मतलब वोट करके उनको इलेक्ट करते हैं। दे आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 5 years, 5 साल के लिए। ए लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबर्स होता है वो 5 साल के लिए उनको इलेक्ट होता है। द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट, सी और ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर ए टर्म ऑफ 5 years। सो यहाँ पे जो गवर्नर होता है, उस स्टेट का जो हेड होता है उसको गवर्नर कहते हैं। यस, सो द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट का जो हेड होता है गवर्नर, उसको कौन सिलेक्ट करते हैं, वो ये जो है ही और सी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो जो होता है वो गवर्नर को सिलेक्ट करता है फॉर 5 साल के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा है, गवर्नर जो होता है हेड ऑफ द स्टेट होता है, स्टेट का हेड होता है, और इनको कौन सिलेक्ट करता है, प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता है। कितना साल के लिए, 5 साल के लिए। Now we'll move to the next. After the assembly election, जब assembly election हो जाता है, the governor invites the leader of the party that has got the maximum seats in the legislative assembly to form the government. तो यहाँ पे हम सीख रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट में भी जो एक मिनिस्टर होता है उसको हम चीफ मिनिस्टर करते हैं, वो कैसे फॉर्म होता है अभी हम यहाँ पे सीख रहे हैं ना। असेंबली इलेक्शन हो जाता है, असेंबली इलेक्शन के बाद जो द गवर्नर क्या करते हैं, ही इनवाइट्स द लीडर ऑफ द पार्टी। यस, जो लीडर पार्टी का जो लीडर होता है, ही इनवाइट्स देम and that has the got and that which leader got maximum
वोट, मतलब सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिलता है, जिसको ज़्यादा मैक्सिमम सीट मिलता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो क्या, वो गवर्नमेंट बनाता है। सो यहाँ पे मैंने देखा जो आफ्टर द असेंबली इलेक्शन द गवर्नर invites the leader of the party that has got maximum seats in the legislative assembly to form the government. The leader of the majority party becomes the chief minister. तो chief minister कौन होता है, जो जो लीडर होता है मेजोरिटी, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली का में जिसको ज़्यादा सबसे वोट मिलता है वो लीडर होता है, और वही हो जाता है चीफ मिनिस्टर। Okay, so we move to the next one. Now, judiciary. This is also very important part in our democracy. The Constitution of India provides for an independent judiciary. Constitution means जो संविधान होता है इंडिया का संविधान, ये प्रोवाइड क्या प्रोवाइड इस प्रोवाइड एंड फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इस इंडिपेंडेंट मतलब ये डिपेंडेंट नहीं होता है, हाँ, स्वाधीन होता है जुडिशियरी। The Supreme Court in New Delhi is the highest judiciary body in our country. So यहाँ पे जो Supreme Court which is in New Delhi is the highest judiciary body in our country. Judiciary मतलब जो न्याय व्यवस्था होता है, ये तो हमारा कंट्री में जो न्यू दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट जुडिशियरी बॉडी होते हैं। इट गिव्स द फाइनल जजमेंट इन एनी लीगल केस, मतलब कोई भी केस होता है तो उसमें जब फाइनल मतलब राय होता है, मतलब लास्ट में क्या सिद्धांत आ जाता है, तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो है वो देता है। There can be maximum of 31 judges in the Supreme Court. तो सुप्रीम कोर्ट में देख कितना मैक्सिमम जजेस कितना होता है, हो सकता है 31। द हाईएस्ट जुडिशियल पोजीशन इज दैट ऑफ चीफ जस्टिस। इसका हाईएस्ट जुडिशियल पोजीशन जो होता है वो उसको कहते हैं चीफ जस्टिस। ऑल द जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये जजेस को किसने अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हम इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो ये सब जो जजेस होता है उसको अपॉइंट करते हैं। द हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियली बॉडी इन अ स्टेट। तो स्टेट में जो हाईएस्ट जुडिशियली बॉडी होता है उसको कहते हैं हाई कोर्ट। तो एक हमने देखा सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो कंट्री में होता है हाईएस्ट जुडिशियली बोर्ड, जो सुप्रीम कोर्ट वो कंट्री में होता है पूरा कंट्री के लिए, और स्टेट के लिए जो होता है उसको हाई कोर्ट कहते हैं। तो स्टेट में जो हाईएस्ट जुडिशियली बॉडी होता है उसको वो है हाई कोर्ट। देयर आर ऑल्सो लोअर कोर्ट इन एवरी स्टेट। तो ये हाई कोर्ट होता है और लोअर कोर्ट भी हर एक स्टेट में होता है। ईच डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट हैज इट ओन कोर्ट। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक राज्य जो हर एक डिस्ट्रिक्ट होता है उनमें भी उनका कोर्ट रहते हैं, हाँ? तो यहाँ पे हमने देखा है जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो न्यू दिल्ली में है, वो इंडिया के लिए होता है, वो हाईएस्ट कोर्ट होता है, और मैक्सिमम 31 जजेस आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट। एंड सुप्रीम कोर्ट का जो जज जो है वो हमारा जो चीफ प्रेसिडेंट होता है वो अपॉइंट करते हैं। और चीफ जस्टिस जो होता है हाईएस्ट जुडिशियल पोजीशन जिसका है वो है चीफ जस्टिस। और यहाँ पे हम देखेंगे जो हर एक स्टेट में भी कोर्ट होता है, जो हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी जो होता है वो हाई कोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो हर एक स्टेट में भी लोअर कोर्ट होते हैं, और ईच डिस्ट्रिक्ट में भी कोर्ट रहते हैं, दे हैव देयर ओन कोर्ट। So this is the judiciary system of our Constitution of India. Okay, so this is the end of this lesson. So thank you, students. Please read this several times, 5 to 6 times. You read the lesson, try to understand, and after when you understand this lesson, then try to complete all the objective type questions, checkpoint, and then of course you learn the quick recap. Okay, and then
then you can write the question answer. So thank you, students. Take care and have a nice time. I'm glad to close the class over here.